Hello class. In the last video lecture, we completed our topic of trees and operations in trees along with the types of trees, right? So now we are going to start our last unit of syllabus, sorting and searching in data structures. So sorting ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ? ਸੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਹੈ, ਸੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲ ਸੋਰਟ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੋਰਟ, ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਸੋਰਟ, ਮਰਜ ਸੋਰਟ, ਹੀਪ ਸੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਦੇ, ਰਾਈਟ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲ ਸੋਰਟ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੋਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ the third sorting algorithm of our syllabus, that's insertion sort. So firstly let's see what is sorting, right? The process of arranging data elements of a data structure in specific order is called sorting. Means arrange karna data elements nu data structure de specific order means ascending या descending order ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੋਰਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਬਬਲ ਸੋਰਟ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੋਰਟ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲ ਸੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ? ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੋਲੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੈਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਰੇ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੋਲੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੈਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਸੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਸੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਇਕ ਸੋਰਟ ਐਂਡ ਮਰਜ ਸੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਸੋਰਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਹੀਪ ਸੋਰਟ, ਹੀਪ ਸੋਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਸੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਸੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਰਾਈਟ? ਇਨਸਰਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਨਸਰਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਇਨ ਐਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ a of i plus 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ a of i 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ a of i ਦੀ ਵੈਲਿਊ a of i plus 1 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਸੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਇਨ ਐਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋ 'ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਸੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਸੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਈਚ ਸਕਸੈਸਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ in the array
to be sorted is inserted into its proper place with respect to the other already sorted elements. Means imagine करके जा रहे हैं कि साडे कोल एक अदर मीनस कोई होर sorted element है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨੈਕਸਟ ਮੀਨ ਸਕਸੈਸਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ ਤੇ। ਵੀ ਸੋਰਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਸੋਰਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ then okay, अगर करंट एलिमेंट ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ then ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਸਵੈਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। we start with the first element, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। so there is only one element in the part of array being examined, means मैं अपने पूरे एरे ਨੂੰ एग्जामिन नहीं कर रही, मैं सिर्फ अजे फर्स्ट एलिमेंट रीड किया। मीनस मैं कला एक पार्ट ही एरे का रीड किया, एग्जामिन उन्होंने कर रही हाँ। एग्जामिन करना मतलब उन्होंने चैक करना, ठीक है। सो अगर तो मैं सिंपली एक एलीमेंट ही तुहानू कह देवां, दसो जी तुहानू मैं लिखवावां जी, लिखो एरे है 5 एलीमेंट्स का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट एलीमेंट है 4, ठीक है। एंड तुहानू पुछां जी दसो हुण 4 सॉर्टेड ऑर्डर विच है या नहीं। सो तुसी यही कहोगे हाँ जी मैम सॉर्टेड ऑर्डर विच होएगा अगर अगले एलीमेंट सारे इहदे तो वड्डे होणगे, ठीक है। हुण वो डिपेंड करेगा अगले एलीमेंट्स दे नाल, बट अगर मैं तुहानू एलीमेंट ही एक देवां एंड एरे ही एक दे देवां दैन वो सॉर्टेड ही होएगा, ठीक है। उस तो बाद असीं नैक्सट स्टैप दे विच जाना है। सो नाउ वी टेक द सैकेंड एलीमेंट इन एरे। हुण सैकेंड एलीमेंट असीं लिया, ठीक है। फर्स्ट एलीमेंट मैं तुहानू पुछया, ठीक है जी, तुसीं कह देना हाँ जी ठीक है, क्योंकि एक ही एलीमेंट है, उन्होंने कंपेयर किहदे नाल करके दसोगे कि सॉर्टेड है कि नहीं, राइट। सो बाय डिफॉल्ट वो सॉर्टेड किया जाता है, ठीक। जदों मैं सैकेंड एलीमेंट ऐड कर देवांगी एरे दे विच तां उहनूं किस लोकेशन ते सेव करना है, इस चीज़ नूं चैक करना पैंदा, ठीक है। लाइक तुहानूं मैं पहला एलीमेंट किया सी 4, ठीक है। हुण मैं तुहानूं कहां जी सैकेंड एलीमेंट है ना जिहड़ा एरे दा वो हैगा 3 एंड इनू सही लोकेशन ते पा दो ओहदी, ठीक है। तुसी की करोगे 4 नू राइट शिफ्ट करोगे, मतलब नैक्सट लोकेशन ते भेज दोगे एंड फर्स्ट लोकेशन ते 3 नू सेव कर दोगे, ठीक है। अगर तुहाडा ह्यूमन माइंड की गल की जाए तो ह्यूमन माइंड इस तरीके नाल वर्क करेगा, राइट। सो तुसी की करोगे पुट इट इनटू इट्स करैक्ट प्लेस सो दैट a of 0 एंड a of 1, a of 0 किहड़ा एलीमेंट है, फर्स्ट एलीमेंट, a of 1 इज द सैकेंड एलीमेंट, ये दोनों सॉर्टेड ऑर्डर विच होण, इस तरीके नाल तुसी उहनूं ओहदी करैक्ट पोजीशन ते सेव करोगे, राइट। नाउ टेक a of 2 i.e थर्ड एलिमेंट्स, मतलब a of 2 केड़ा हुंदा, थर्ड एलिमेंट हुंदा, राइट। फर्स्ट एलिमेंट, सैकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट इन द एरे एंड रिपीट द प्रोसीजर अगेन। वही प्रोसीजर चेक करोगे। लेट्स इमेजिन मैं तुहानूं 4 3 तो बाद 8 दे देवां, ठीक है। तुसीं की करोगे, तुसीं पहला 3 4 उहनूं शिफ्ट कर लिया है, ठीक है, नैक्सट पिछले स्टैप दे विच। इस स्टैप 'च तुसीं उहनूं 3 एंड 4 लिख लिया। हुण तुहानूं मैं कहां जी थर्ड एलिमेंट है 8, तुसीं की करोगे, उस 8 नूं कित्थे रखोगे, 4 तो बाद रखोगे, ठीक है। सो तुहानूं शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं उहदे विच, ठीक है। अगर मैं 8 की जगह ते तुहानूं 2 1 या 0 कह दिंदी तो उस टाइम ते तुहानूं फिर शिफ्ट करने पैंदे सी 4 एंड 3 दोनों नूं, उस तो बाद तुसीं उहनूं ऐड करना सी उहदी करैक्ट पोजीशन ते, ठीक है। सो यही प्रोसीजर जिहड़ा है वो असीं बार बार रिपीट करते रहना। कदों तक करना है, दिस प्रोसैस इज कंटिन्यूड अंटिल ऑल द एलीमेंट्स हैव बीन सॉर्टेड। उदों तक चलता रहना है प्रोसीजर जो तक सारे एलीमेंट सॉर्टेड ऑर्डर विच ना आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, अगर रियल लाइफ की एग्जाम्पल की गल की जाए तो रियल लाइफ के विच जदों असीं कार्ड्स प्ले करते हैं, कार्ड्स खेले होंगे सब ने, ठीक है। जदों कार्ड्स खेलते हो तो उस टाइम तो उन्होंने ट्राई करते हैं असीं कि उन्होंने सॉर्टेड ऑर्डर विच रखा जाए। मान लो तुहानूं मैं कह देवां जी तुहाडे कोल कार्ड्स है जिन्हां दे उत्ते 1 to 9 नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है, एंड वो शफल किए हुए आ, सॉर्टेड ऑर्डर विच नहीं है। एंड तुहानूं मैं कहां जी उन्होंने सोर्ट करके दो, तुसीं की करोगे सोर्ट करन दे लई, सब तो पहला फस्ट कार्ड नूं रीड करोगे उहदी वैल्यू कितनी है, ठीक है। वो तुसीं कहोगे कोई नहीं इन्हूं इत्थे रहण देने, हुण सैकेंड कार्ड देखदा हूँ की है, ठीक है। सैकेंड कार्ड देखोगे तो फस्ट वाले तो वो अगर छोटा होएगा तो सैकेंड नूं उपर रख दोगे फस्ट वाले दे, ठीक है। मतलब फस्ट नूं सैकेंड पोजीशन ते भेज दिता एंड सैकेंड नूं फस्ट पोजीशन ते भेज दिता। सिमिलरली थर्ड दे नाल करोगे,
ठीक है। एंड इस तरीके नाल असीं शिफ्टिंग करते रहने आ। एक कार्ड नूं पहलां तो एक्सट्रैक्ट करोगे, थर्ड नूं चक्किया, दैन उन बाकी वाले एलीमेंट्स नूं शिफ्ट किया, दैन उन्होंने थर्ड नूं उहदी करैक्ट पोजीशन ते सेव कर लिया, ठीक है। इदां ही फोर्थ वाले नूं चक्किया, ਉਹਨੂੰ शिफ्ट की ਉਹਦੇ ਲਈ शिफ्ट किया बाकी कार्ड्स ਨੂੰ, एंड ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ एग्जैक्ट लोकेशन ਤੇ सेव कर लिया, ठीक है। एंड द प्रोसैस इज रिपीटेड अंटिल ऑल द कार्ड्स आर इन करैक्ट सीक्वेंस, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ तक ਸਾਡੇ कार्ड्स सारे ਦੇ ਸਾਰੇ नहीं आ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ठीक है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਸੋਰਟ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ठीक है जी। इंसर्शन सॉर्ट जी है ह्यूमन माइंड के तरीके नाल वर्क करती है, बट यदी एक लिमिटेशन है, ये छोटी लिस्ट ते ही वर्क कर सकती है परफेक्टली। अगर तो साडी लिस्ट दे विच स्मॉल नंबर ऑफ एलीमेंट्स है तो ये बहुत वधिया तरीके नाल एंड कंपलैक्सिटी घट रख के साडी सॉर्ट कर सकती है, ठीक है। बट अगर मेरे को थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स की लिस्ट है, हुण मैं तुहानूं थाउजेंड ऑफ कार्ड्स दे देवां एंड कहां जी इन्हां नूं अरेंज करो, दैन तुहाडे लई बहुत टाइम कंज्यूमिंग होएगा ये कंसैप्ट, ठीक है। इस करके इंसर्शन सॉर्ट अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलीमेंट्स से इंप्लीमेंट करनी है तो वो ये कंपलैक्सिटी वध जाती है, ठीक है। हुण असीं इहदी एक एग्जाम्पल करते हैं इंसर्शन सॉर्ट दी एरे दे विच किस तरीके नाल वर्क करदी, ठीक है जी। सो नैक्सट एग्जाम्पल लई एक एरे है, उहदे विच 4 एलीमेंट्स है, ठीक है। हुण एरे नूं इस तरीके नाल कह लो चाहे इस तरीके नाल लिख लो, है तो ये एक एरे ही। एरे का मतलब सी कॉन्टीन्यूअस मैमरी लोकेशन के उत्ते सेम डेटा टाइप के एलीमेंट सेव करना। सो उन्होंने चाहे तुसी वर्टिकली लिख लो चाहे होरिजोनटली लिख लो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो ये एरे से इनू मैं इस तरीके नाल लिख लिया 4 3 1 2 सिमिलर लाइन ही है, ठीक है जी। इनू असीं सॉर्ट करना है यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। किद्दां करांगे देखते हैं जी, ठीक है। सब तो पहला रूल है इंसर्शन सॉर्ट का। हुण मैं तुहानूं एक स्टार्टिंग ते कहा सी इंसर्शन सॉर्ट नाम दस रहा, कुछ इंसर्ट करना है। इंसर्ट की करना है, एक सेंटिनल वैल्यू मीनस एक इहो जी वैल्यू जिहड़ी सानूं कन्फर्म पता है कि स्मॉलेस्ट ही होएगी, चाहे जिहड़े मर्जी नंबर दे नाल तुसीं उहनूं कंपेयर कर लो, ठीक है। हुण तुहानूं इन्ना तो पता होएगा कि नैगेटिव नंबर्स जिहड़े है पॉजिटिव नंबर्स नालों छोटे हुंदे ने एंड 0 तो भी छोटे होंगे ने, ठीक है। एंड इनफिनिटी का मतलब अगर सिंपल इनफिनिटी की गल करिए तो मैक्सीमम जिन्ना नंबर वड्डा हो सकता है, मैक्सीमम लिमिट जिन्नी नंबर की हो सकती है वो आती है इनफिनिटी एंड ये काउंटेबल नहीं होंगी क्योंकि वो उन्ना नंबर असीं काउंट ही नहीं कर सकते। एंड अगर मैं उन्होंने माइनस इनफिनिटी कह देवां तो यदा मतलब है कि मैक्सीमम नैगेटिव नंबर मतलब सब तो छोटा नंबर, दुनिया का सब तो छोटा नंबर जिन्हों असीं शायद काउंट भी ना कर सकीए, ठीक है। जिहदी वैल्यू सानूं पता भी नहीं हो सकती, अनकाउंटेबल स्मॉलेस्ट एलीमेंट जिहड़ा है उन्होंने सेंटिनल वैल्यू कहते हैं, उन्होंने माइनस इनफिनिटी के नाल डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो मैं माइनस इनफिनिटी नूं इंसर्ट करना है अपने एरे दे विच फर्स्ट पोजीशन ते। सो माइनस इनफिनिटी नूं एरे दे विच सब तो पहला स्टैप यही है कि माइनस इनफिनिटी नूं एरे दी फर्स्ट लोकेशन ते सेव कर दो, ठीक है। एंड दैन सारे एलीमेंट्स उस तो बाद ही एलीमेंट्स ऐड करने हैं एरे दे विच जिन्हां ते सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। मीनस जो एरे क्रिएट करांगे सॉर्टिंग अप्लाई करन तो पहला तो उस टाइम ते एरे दे विच फर्स्ट एलीमेंट माइनस इनफिनिटी ही होएगा, ठीक है। अगर नहीं सेव किया माइनस इनफिनिटी दे दैन असी एलीमेंट्स नूं राइट शिफ्ट करके जिद्दां इंसर्शन एट बिगनिंग करते सी उस तरीके नाल इंसर्शन एट बिगनिंग के स्टैप्स यूज़ करके उत्थे माइनस इनफिनिटी इंसर्ट करना है। हुण इंसर्ट होगी माइनस इनफिनिटी एंड एलीमेंट्स कर दिते ऐड, ठीक है। सो मैं तुहानूं पुछया अगले नंबर ते तुहानूं मैं फर्स्ट एलीमेंट दिता 4 नूं अपने आप नाल कंपेयर करोगे, ठीक है, तो तुहानूं इन्ना पता लग जाएगा कि 4 अपने आप दे विच सॉर्टेड ऑर्डर विच ही है। इनू किसी होर एलीमेंट नाल कंपेयर करोगे फिर तुहानूं पता लगेगा कि एलीमेंट सॉर्टेड ऑर्डर विच है या नहीं। मीनस असी एलीमेंट्स की जिहड़ी कंपैरिजन है वो असी सैकेंड एलीमेंट तो स्टार्ट करना है, ठीक है। सैकेंड एलीमेंट मीनस एक्चुअल दे विच एरे दे विच थर्ड एलीमेंट होएगा बट सैकेंड पोजीशन ते जिहड़ा एलीमेंट होएगा उस एलीमेंट तो स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो स्टार्ट किया असी 3 दे नाल। 3 नूं असी जदों भी स्टार्ट करना तो 3 नूं सब तो पहला असी टैंप दे विच स्टोर करवा देना, जिहड़ा मर्जी नंबर होवे जिन्हों तुसीं कंपेयर करन नाल स्टार्ट करन लगे हो
ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ 4 ਐਂਡ 3 ਦੇ ਨਾਲ, 4 ਨੂੰ ਤੇ 3 ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੈਂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ 4 ਵੱਡਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ, ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, a of i plus 1 is equal to a of i, ਰਾਈਟ, ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। i ਦੀ ਵੈਲਿਊ i plus 1 'ਚ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 'ਚ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ 2 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 4 ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। a of i, if a of 1 at its correct location, a of 1 ਨੂੰ ਉਹਦੀ correct location ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੇਡਡ ਪਾਰਟ, ਆ ਜਿਹੜਾ orange ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਸ਼ੇਡਡ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ ਖਾਲੀ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਂਪ ਨੂੰ a of 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, a of 1 ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ 3 ਐਂਡ 4 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਟਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਯੈਸ, ਬਿਕੋਜ਼ 3 ਛੋਟਾ ਹੈ ਐਂਡ 4 ਵੱਡਾ, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 4 ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਸੋਰਟਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ 1 ਦੀ, ਮਤਲਬ 3rd ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ a of 3 'ਚ ਸੇਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਐਂਡ 4 ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਐਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ 1 ਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ 1 ਨੂੰ ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 4 ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ, ਐਂਡ 3 ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ 1 ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਨੀਚੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੈਨ 3 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਆਹ ਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਖਾਲੀ। a of 1 ਐਂਡ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੀਗੇ 1 ਐਂਡ 2, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਐਟ ਇਟਸ ਕਰੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ a of 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ a of 3 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਸੋਰਟਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਰਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆ 3 ਸੋਰਟਡ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ 2 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਅਗੇਨ 2 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, 4 ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ 3 ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ 2 ਤੋਂ, ਬਟ 1 ਛੋਟਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, 3 ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, 1 ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 1 ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, 1 ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਿਲ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਰੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, a of i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟੈਂਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ।
अदरवाइज शिफ्टिंग नहीं करनी। अगर 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ a of 1 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 1 ਵੱਡਾ ਹੈ 2 ਨਾਲੋਂ नहीं, मीनस आ स्टैप शिफ्टिंग वाला होना ही नहीं। सो 1 ने अपनी लोकेशन ते ही रहना। दैन उस तो बाद इत्थे 2 ऐड होना। अच्छा इत्थे मैं एक स्टैप दे विच मैं 2 उपर शिफ्ट करना भुल गई हाँ, प्लीज़ उन्होंने ठीक कर लियो। आंसर आएगा 1 2 3 एंड 4 है, छोटी जी मिसटेक होगी इत्थे, ठीक है जी। स्टोर किया a of 4 नू मतलब 2 नू ਉਹਦੀ एग्जैक्ट लोकेशन ते मीनस a of i इज इक्वल टू temp। इत्थे हुण 2 आएगा, इत्थे 3 आएगा एंड इत्थे 4, मतलब इस एरे दे विच इत्थे 2 स्टोर करके इत्थे लिख लियो, ठीक है। छोटी जी गलती है, इन्हूं ठीक जरूर कर लियो, ओके क्लास। सो इस तरीके नाल साडी सॉर्टिंग जिहड़ी है अपने एरे दे एलीमेंट्स दे उत्ते इंसर्शन सॉर्ट दी हेल्प दे नाल हुंदी है, ठीक है। सो हुण असीं पहलां इहदा एल्गो समझते हैं, ठीक है। उस तो बाद इहदी एक नवीं एक होर एग्जाम्पल इहदी समझांगे, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट दा एल्गो सब तो पहला स्टैप की सीगा, फर्स्ट लोकेशन ते माइनस इनफिनिटी नूं सेव करवाना, ठीक। उस तो बाद रिपीट करना, रिपीट स्टैप 3 to 5 इस करके लिखिया क्योंकि असी पासिस चलाने, ठीक है। हर पास दे विच असी 3 काम कर रहे सीगे, ठीक है। एक काम आ वाला, दूसरा काम एंड तीसरा काम। फर्स्ट काम की सीगा टेंप वेरिएबल दे विच कुछ स्टोर करवाना, सैकेंड काम सीगा शिफ्टिंग करवानी, थर्ड काम सी उस एलीमेंट नूं अपनी सही लोकेशन ते भेजना, ठीक है। सो यही 3 काम ने। फर्स्ट काम है टेंप वेरिएबल दे विच वैल्यू पानी। 2 तो स्टार्ट कर रही हैं, क्यों? क्योंकि असीं 2 तो ही स्टार्ट किया सी, याद करो। फर्स्ट स्टैप a of 2 तो स्टार्ट किया सी, ठीक है। इस करके मैं k दी लूप जिहड़ी है इत्थे मैं k लिखिया, i भी यूज़ कर सकते हो तुसीं, ठीक है। 2 तो इसे करके स्टार्ट की, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट एलीमेंट नूं अपने आप दे नाल ही कंपेयर करी जावां तो उहदा कोई फायदा नहीं हैगा, ठीक है। इस करके मैं नहीं कंपेयर करना हूँ, ठीक। एंड PTR वेरिएबल में इस करके यूज़ किया क्योंकि मैं पॉइंटर रखना है कि मैं किहड़ी वैल्यू नूं कंपेयर कर रही हूँ। इस करके k-1 PTR मीनस मैं पिछे पिछे मूव करन दे लई पुरानी वैल्यूज़ जिहड़ियां सॉर्टेड ऑर्डर विच कीतियां होईयां उन्हां दे विच भी तां कंपैरिजन करना है, उन्हां दे नाल अपने करंट वेरिएबल नूं कंपेयर करना है, ठीक है। उहदे लई मैं PTR वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, ठीक। अगला स्टैप की सीगा शिफ्टिंग करना। शिफ्टिंग कदों करनी है? सिर्फ अगर साडे PTR दी वैल्यू मतलब a of i लिखिया सी असीं उत्थे पिछले स्टैप दे विच उहनूं a of i इज़ ग्रेटर दैन टेंप लिखिया सी, इत्थे मैं a of PTR ग्रेटर दैन टेंप लिख दिता। गल तो सेम ही है क्योंकि असीं PTR i नूं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उहदी वैल्यू जा रही है उहदे विच, ठीक। सैट किया a of PTR + 1 इज़ इक्वल टू a of PTR, यही स्टैप सीगा पिछे, a of PTR + 1 इज़ इक्वल टू a of PTR, ठीक है। एंड PTR की वैल्यू नूं PTR - 1 दे नाल इस करके कर रहे हैं बिकॉज असी अगर एक एलीमेंट नूं कंपेयर किया इहदे नाल पहलां तो इनू नीचे शिफ्ट कर दिता, उस तो बाद इस तो प्रीवियस वैल्यू नाल भी तो करना है, मतलब PTR च की सीगा इनिशियली 3, हुण उहनूं 2 दे नाल भी तो रीप्लेस करना है, ठीक है। इस करके PTR की वैल्यू ने एक बार -1 किया ताकि वो हर एक एलीमेंट दे नाल कंपेयर करे करो तक जो तक उन्होंने उहदे तो छोटी एलीमेंट नहीं मिल जाता। अच्छा अगर इत्थे इमेजिन करते हैं इत्थे 1 ना हुंदा, ठीक है, एंड 2 इन्ना कंपेयर करने तो बाद आ जगह ही ना होंगी ये वाली, ठीक है। 3 एंड 4 एंड 2 आ 3 एलीमेंट्स होंगे, दैन 2 ने 3 ना कंपेयर करना सी, 3 नूं नीचे शिफ्ट कर देना सी, उस तो बाद फिर पॉइंटर पिछे चला जाना सी, दैन उन्हें -इनफिनिटी नाल कंपेयर करना सी। -इनफिनिटी तो सानूं पता ही है छोटा एलीमेंट है, ठीक है, ये 2 तो भी छोटा है। सो 2 नूं पता लग जाना सी कि इस तो बाद ही मेरी वारी आनी है, इस तो पहला नहीं आ सकती, ठीक है। सो 2 ने फिर अपनी सही लोकेशन पर पहुँच जाना सी। इस करके इत्थे जिहड़ा PTR -1 वाला स्टैप यूज़ किया एंड यही रीजन है भी असीं -इनफिनिटी यूज़ किया, ठीक है। एंड नैक्सट है सैट a of PTR + 1 इज़ इक्वल टू टेंप। PTR दे विच k-1 सीगा, k च की सीगा 2, k-1 + 1 मीनस k लोकेशन अगेन 2 जिहड़ा एलीमेंट जिहड़े एलीमेंट नूं असीं कंपेयर कर रहे सी उस एलीमेंट उस जगह ते उत्ते टेंप नूं सेव करवाना उहदी जगह ते, ठीक है। एंड ठीक है, ये इत्थे साडा इंसर्शन सॉर्ट दा एल्गो खत्म होया, ठीक है। यदि इंट्रोडक्शन जरूर लिख लियो ये कि इंसर्शन सॉर्ट दा एल्गो जिहड़ा ए एरे दे उत्ते इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एन नंबर ऑफ एलीमेंट्स है उहदे विच, एक टेंप वेरिएबल असीं टेंपरेरी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जिहदे विच असीं डाटा एलीमेंट स्टोर करांगे। के जिहड़ा है वो इनिशियलाइज ऑपरेटर है, ठीक है, जिन्हों असीं यूज़ करना है। एंड PTR भी साडा एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। ये चीज़ां तुसीं जरूर लिख लियो इहदे विच। इस तो इलावा असीं हुण नैक्सट अगले एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। थोड़ी जी वड्डी एग्जाम्पल लवांगे, ज़्यादा छोटी नहीं, 4 एलीमेंट्स ही नहीं, असीं थोड़े ज़्यादा एलीमेंट्स लवांगे ताकि चंगी तरह समझ आए किस तरीके नाल वर्क करदा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 नूं अपने आप नाल कंपेयर नहीं करना, 5 ना कीता तो 5 छोटा सी तो उन्होंने अगे से मूव करता, 6 नूं पिछे मूव करके,
नैक्सट टर्न है 3 दी, 3 तो 6 भी वड्डा है, 6 पिछे मूव कर दिता, 5 भी वड्डा है, 5 भी पिछे मूव कर दिता, दैन 3 नूं दी एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। इत्थे माइनस इनफिनिटी होएगा स्टार्टिंग ते। वारी आई 1 दी, 6 वड्डा है पिछे, 5 वड्डा है ये भी पिछे, एंड 3 वड्डा है इनू भी पिछे मूव कर दो, एंड दैन 1 नूं ओहदी एग्जैक्ट लोकेशन ते सेव कर दो। दैन नैक्सट है 8, 8 नूं कंपेयर करांगे किस नाल, तो सही लोकेशन ते ही है। 7 नूं कीता तो पता लग गया इहदे नाल कंपेयर करन ते भी इन्हें पिछे मूव होना, बट 6 छोटा ही सी सो मूव नहीं किया। 2 दे नाल कंपेयर किया, 8 पिछे मूव करना है, 7 भी पिछे मूव करना है, क्यों और तक मूव करना पिछे जो तक मैनू 2 तो छोटा एलीमेंट नहीं मिलता, अगेन पिछे, एंड 1 छोटा है सो इत्थे 2 नूं ओहदी एग्जैक्ट लोकेशन ते सेव कर दिता। नैक्सट है 4, 4 दी टर्न है, 8 भी पिछे, 7 6 5 3 छोटा आ जाना, इत्थे आके 4 ने सेव होना है। देख लो एक बार, ठीक है जी। सो हुण साडे सारे एलीमेंट सॉर्टेड ऑर्डर विच आ गए। दोबारा देख सकते हो एग्जाम्पल, अगर दोबारा देखनी है। 6 के नाल कंपेयर किया 6 नूं, कोई फायदा नहीं। 5 के नाल किया 6 नूं, पिछे मूव करना 6 नूं, एंड 5 नूं ओहदी सही लोकेशन ते भेज दिता, ठीक है। दैन नैक्सट है 3 दी वारी, 6 पिछे, 5 भी पिछे, एंड 3 नूं ओहदी एग्जैक्ट लोकेशन ते भेज देना, ठीक। इत्थे बाय डिफॉल्ट माइनस इनफिनिटी होएगा, शिफ्टिंग 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 माइनस इनफिनिटी ना कंपेयर किया, 1 नूं ओहदी सही लोकेशन मिल गई क्योंकि माइनस इनफिनिटी तो 1 वड्डा ही है, ठीक है। 8 ने अपनी सही लोकेशन पर ही रहना है क्योंकि 6 तो छोटा ही सीगा। 7 ने उहदे मूव करना है, ठीक है जी। उस तो बाद हुण वारी है 2 दी, 2 ने भी मूव करना अपने एलीमेंट्स नूं, प्रीवियस एलीमेंट्स नूं, अपने तो वड्डे जिहड़े हैगे उन्हां नूं, ताकि उन्हें एरे दे विच सही लोकेशन ते आ जाण, ठीक है। हुण इहदे विच मैं जिहड़ा ब्लैक डार्क सर्कल्स है, सॉरी डार्क बॉक्सिस है, ये ही दर्शा रहे हैं कि कितना एरे साडा इमेजिन हो चुका है, एग्जामिन कर चुके हैं जिन्हों असीं, ठीक है। सो लास्ट एलीमेंट से उन्होंने असीं एग्जामिन किया, एंड लास्ट नूं उहदी सही लोकेशन ते सेव कर दिता, ठीक है जी। That was all for today's lecture. So if you have any type of doubt or queries, you can text me in comment section. And class, प्लीज़ ध्यान रखियो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 10 मार्क्स के विच भी आ जाता है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स चाहता है, तुसीं एग्जाम्पल भी दोगे, एग्जाम्पल पूरी सोल्व करोगे, प्लस एल्गो लिखोगे, एंड उस तो पहला सॉर्टिंग की पहला डेफिनेशन दोगे। स्टार्ट किद्दां करना है, सॉर्टिंग की डेफिनेशन देनी है, फिर सॉर्टिंग के टाइप्स दसनी है, उस तो बाद इंसर्शन सॉर्ट की डेफिनेशन देनी है, किस तरीके नाल करनी है, स्टैप्स लिखने हैं जिहड़े स्टार्टिंग तुहानूं लिखवाए। उस तो बाद तुसीं एक एग्जाम्पल करवाओगे, उस तो बाद एंड ते असीं एल्गो लिखना है विद कमेंट्स। एल्गो दे नाल जिहड़े स्केयर ब्रैकेट्स दे विच कमेंट्स लिखते हैं वो जरूर लिखने हैं, ठीक है। अगर 10 मार्क्स आंदा है, अगर 5 मार्क्स आंदा तो सिंपली इंसर्शन सॉर्ट की पर डेफिनेशन लिखनी है, स्टैप्स लिखने हैं, एंड एक छोटी जी एग्जाम्पल कोई भी लैके, लाइक मैं 4 एलीमेंट्स की एग्जाम्पल लैके तुहानूं समझाया, तुसीं इस तरीके नाल 4 एलीमेंट्स की एग्जाम्पल लैके छोटे स्टैप्स के विच उन्हें सोल्व करना जिद्दां तुहाडी बुक विच गिवन है, ठीक है। एंड दैन उहदा एल्गो जरूर लिखना है, एल्गो लिखना नहीं भुलना, एल्गो जरूर याद रखना है हर एक चीज़ का, ठीक है क्लास। Thank you for the timing. All the best for your examinations. Thank you.